mandala. Okay. So first we are going to see the patterns. So mandala is basically a circle in Sanskrit. It means a circle. जिसे कहते हैं ना मंडली जमा के बैठना, वैसे similarly मंडल. Now patterns जब भी हम start करते हैं, we start from the basic pattern that is a dot or a बिंदु, जहाँ से पूरी सृष्टि का जो है निर्माण हुआ है. The world is started from a point or speck. So we start from the bindu. Then when two points get connected, you get a line. In line, we have three types of lines. Horizontal line, vertical line, and slanting line. Now, whenever we use these patterns, the actual magic or the effect that we get from line pattern is because of the distance that we keep between two lines. So for simple example, now this is very typical example that I give in every class. So if I have these two circles, which I have to fill with line pattern. Okay. So first, say I'll make lines very close to each other. And in second one, I'll make lines little far apart. So you can immediately see the difference, that this will give you appearance as if this is very dense and intricately done. And this, you will understand that it's little bolder in look. So the distance that you keep between lines is very important, and magic lies between the distance. Then third pattern in this one is, if you want to make pattern out of these line pattern, you can make a V like this. Now this is very typical border in all our folk arts in India, जैसे वारली है, मधुबनी है. This is very basic border line that we use, made of line pattern again. Coming next to circle, so this is our first pattern. Second pattern. Third pattern is the circle, where circle in itself can become a pattern in case you want to use that as in one line. इसको बना देंगे तो एक chain जैसा दिखेगा. If you want to interlock two circles, you can interlock them like Olympic sign. If you want to make concentric circles, that will be also another type. If you want to make a jalebi, that will also be another pattern, or spiral pattern as we can call it. If you want to elongate this circle a little bit, you will get an oval shape or an ellipse. That can also be a pattern from the circle family. Egg shape. Then, when we cut the circle into half, we will get a semicircle. Then, if you cut the circle at a random place, suppose here or here somewhere, then I'll get a curve only. So that curve does not have the center of the circle. As you can see, suppose if this is my baseline,
तो बेस लाइन पे ये सारे जो सर्कल्स है उनका सेंटर यहाँ पे रहेगा. कर्व में दैट डजंट हैपन. इन कर्व द सर्कल सेंटर विल बी समवेयर हियर. तो मैं समझो कॉम्पस यहाँ पे रख के एक ऐसे रैंडम कर्व ड्रॉ करूंगी. सो द सेंटर नीडंट बी हियर. देन द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल, सपोज मैंने बस इतना सा एक टुकड़ा कट कर लिया. कैन जस्ट इमेजिन लाइक अ पिज्जा स्लाइस. सो यू हैव दिस स्मॉल आर्क, can be into a petal shape, leaf shape, or just a dash of curve, comma line, comma जैसा. तो ये एक पैटर्न बनता है आर्क से. दैट्स द स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ द सर्कल पॉसिबल. तो से a curve can be a semicircle can be a curve and an arc. A curve can be an arc, but an arc and curve cannot be a semicircle because of the position of center. मतलब ये एग्जैक्ट हाफ दो होता है. ये जो है वो कहीं पे भी हो सकता है. नीडेंट बी हाफ और 3/4 और 1/3, जो भी होगा उसके हिसाब से ये हमारा कर्व का लेंथ आएगा. देन सो दीज सर्कल फैमिली में जो भी पैटर्न्स हैं ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं मंडला आर्ट में. whatever patterns, whatever style of mandala that you're drawing, 60 से 70% ज्यादातर ये सर्कल के कर्वी जो एलिमेंट्स है वो ज्यादातर यूज होते हैं. द रीजन बिहाइंड दिस बीइंग कि एस्थेटिकली इफ यू वॉच, कर्व्स जो है वो ज्यादा अपीलिंग लगते हैं rather than the straight lines. Straight lines of course they have their own beauty, पर ज्यादा इफेक्टिव अगर आप देखो तो सिमेट्रिक अच्छे कर्व्स ज्यादा लगते हैं. सो वी यूज दैट. देन यू कमिंग टू द नेक्स्ट फैमिली. whenever you have these lines clubbed together you will get a plane. तो प्लेन जब भी बनता है तो जितने नंबर ऑफ साइड्स है उसके हिसाब से पॉलीगॉन्स अलग अलग कैटेगरी में आते हैं. तो सबसे कम साइड वाला जो पॉलीगॉन है, पॉली इज मल्टी एंड गॉन मीन्स साइड. तो सबसे कम साइड्स वाला जो पॉलीगॉन है वो है ट्राइंगल. So you can see it is made of line pattern complete. तो इन ट्राइंगल एक तो आप ये वाला बना सकते हैं, ऐसे मैंने ऊपर और नीचे लाइन बना दी तो मेरा ये ट्राइंगल पैटर्न हो जाएगा. देन यू कैन मेक अ स्पाइरल आल्सो लाइक दिस. ये लाइन यहाँ तक ही रुक जाएगी. इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग टिल द एंड, देन आई चेंज इट हियर like this, like this, like this, and this. This becomes a spiral like pattern per triangle shape. Then you can make triangle within a triangle. बस लाइन्स ऐड करके आपको बहुत सारे पैटर्न्स उसमें मिलते हैं. नेक्स्ट लाइन और नेक्स्ट पॉलीगॉन is the quadrilateral. Now quadra means 4. 4 साइड वाले जो भी शेप्स बनते हैं उन्हें हम क्वाड्रिलैटरल कहते हैं. Now square, rectangle, all these are types of quadrilaterals. So first quadrilateral is a square. Then you have rectangle, which is widely used again. Then you also have trapezium, diamond or kite shape or rhombus. Now trapezium is not really very aesthetic and appealing to look at. तो इतना ब्यूटीफुल नहीं आता है क्योंकि इसके जो ये कोन्स है वो शार्प एजेस है वो खटकते हैं हमारी आंखों में. तो दे आर लाइक ओके. बट दिस स्क्वायर, रेक्टेंगल, डायमंड, दीज आर वाइडली यूज्ड इन मंडला. और ज्यादा आप देखोगे तो ये डायमंड रॉम्बस यूज होते हैं फॉर फ्रेमवर्क या फिर छोटे छोटे जहाँ पे आपको डायरेक्शन देना है, अब वो आप वहाँ पे यूज करते हो. देन
For squares, you can make patterns like the spiral again. ऐसे हो सकता है. देन स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, एक स्क्वायर हो गया, फिर उसके मिड पॉइंट्स कनेक्ट करके दूसरा स्क्वायर टिल्टेड वाला बना सकते हो, फिर उसको जोड़ के मिड पॉइंट्स, अंदर का एक और स्क्वायर, देन सो ऑन एंड सो फोर्थ. ऐसे आप बनाते जा सकते हो, एक के अंदर एक के अंदर एक, एंड यू कैन फिल इट विद डिफरेंट पैटर्न्स. तो ये भी काफी पॉपुलर है. इफ यू ऑब्जर्व नव मंडला जो है, जैसे हम अभी आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, आप जिस इंटेंट से उसको बनाते हैं, जैसे रिलीजियस एस्पेक्ट है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, मेडिटेशन एस्पेक्ट है, उसके हिसाब से उसके पैटर्न्स थोड़े बहुत यहाँ वहाँ हम चेंज करते हैं. और अगर आप देखोगे तो हर रिलीजन में ऐसे डायग्राम्स है. जैसे हिंदुइज्म में आप देखो तो ये बहुत यंत्र के जो डायग्राम्स है, श्री यंत्र है, महालक्ष्मी यंत्र है, देन शनि यंत्र है, बहुत सारे ऐसे साइंटिफिकली डायग्राम्स बनाए गए हैं विच ब्रिंग इन वाइब्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. तो आप देखोगे तो सारे मंडला की ही है पैटर्न्स, इफ यू ऑब्जर्व वेरी कीनली. तो उसके बाद बुद्धिज्म में एक सैंड मंडला करके बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो होते हैं सैंड मंडला प्रैक्टिस करते हैं. इट इज लाइक अ बिग रंगोली. जो सपोज हमारी 10x10 की रूम है, वहां पे बड़ी सी एक रंगोली आप बना रहे हो, तो वैसे सारे ग्रुप ऑफ मॉन्क्स जो भी है वो मिलके एक बड़ा सा मंडला बनाते हैं. बहुत बारीकी से उसमें काम करते हैं. एक थोड़े दिन बाद वो खत्म हो जाता है बना के, एंड वंस इट इज ड्रॉन दे डिस्ट्रॉय के सैंड मंडला को डिस्ट्रॉय करते हैं वो बनने के बाद. द रीजन इज स्पिरिचुअल एस्पेक्ट बिहाइंड कि लाइफ इज क्वाइट टेम्पररी. अभी एक मिनट में है, अगले मिनट में शायद ना हो. सो इट्स देयर प्रैक्टिस फॉर पेशेंस. तो सैंड मंडला इज वेरी पॉपुलर दैट वे इन बुद्धिस्ट कंट्रीज स्पेशली, और मोनास्ट्रीज जहाँ पे भी ये मॉन्क्स इसकी प्रैक्टिस करते हैं. ओके, यहाँ तक क्लियर है? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. शुड आई प्रोसीड? स्पीड ठीक है ना? अगर कुछ कम ज्यादा हो रहा है तो बता दे. नहीं मैम, परफेक्ट. नेक्स्ट वी मूव to the 5-sided polygon, which is pentagon. तो पेंटागन में 5 sides आएंगे. And pentagon, as you can see, is not very symmetrical kind of pattern.
So it will show you some direction. This arrow will give you some kind of direction. So ये ज्यादातर आप लास्ट लेयर्स में जहाँ पे आपको एंड करना है मंडला वहां पे यूज कर सकते हो, या फिर जहाँ पे आपको थोड़ा सा शार्प एरिया चाहिए वहां पे आप ये पैटर्न यूज कर सकते हो. देन सिक्स साइड्स वाला पॉलीगॉन हेक्सागन. ये इस तरह से भी हनीकोम वाला भी ऐसे ही ड्रॉ करते हैं. इस तरह से भी आप कर सकते हो. सो ये ज्यादातर ज्योमेट्रिक मंडला जो है पैटर्न है या स्टाइल है, उसमें ये हेक्सागन, ऑक्टागन, ये सारे पॉलीगॉन ज्यादा यूज होते हैं. और इस्लामिक पैटर्न करके जो है, जियो इस्लामिक डिजाइन्स जो होते हैं, उसमें ये बहुत अहम इम्पोर्टेंस रखते हैं. ये सारे जो पैटर्न्स है, तो आपने देखा होगा कभी ऐसे जाली जो होती है, दिस इज डन मोस्टली इन पर्शियन कंट्रीज. जाली वर्क टिपिकल जो रहता है वहां पे, तो आप देखोगे ऐसे पैटर्न्स होते हैं वहां. दिस इज ऑफ कोर्स वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ. इसमें ज्यादातर ज्योमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, और जैसे जैसे आप थोड़ा सा ये डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता जाता है. इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ डिजाइन्स. तो ऐसे जो कॉम्बिनेशन में डिजाइन्स बनते हैं उसको रोजेट कहते हैं. सो इफ यू जस्ट सर्च ऑन गूगल फॉर रोजेट इन ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, यू विल गेट सच डिजाइन्स. बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं और नाप तोल के उसमें बनाना पड़ता है, क्योंकि सारे साइड्स जो है वो एग्जैक्ट एंगल में होने चाहिए, एग्जैक्ट उसका डायमेंशन करेक्ट चाहिए ऐसे. तो उसमें ये सारे ज्यादातर रहते हैं पॉलीगॉन्स. देन वी हैव ऑक्टागन. So in hexagon we have every angle as 60 degrees. In pentagon we have 72 degrees. इसमें होता है 60 ट्राइंगल में. आई एम अज्यूमिंग कि सारे जब इक्वल होते हैं तब. हाँ, आप अगर अलग अलग कर सकते हो तो वैसे भी करते हैं हम. इसमें 90 होते हैं और इसमें 45 होता है हर एक एंगल. ऑक्टागन, हेक्सागन, पेंटा, ओके, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ऐसे बेसिक हमारा ये लाइन पैटर्न से ये सारे पॉलीगॉन की फैमिली है. देन मूविंग अहेड वी हैव अनदर मेंबर फ्रॉम दिस आर्च फैमिली. आर्च में आप देखोगे ये छोटा सा आर्क है, ARC वाला. ये कर्व है एंड दिस इज सेमी सर्कल. नाउ ये आर्क का थोड़ा सा रिफाइन फॉर्म जो है वो है आर्च या कमान. सो ये फोर्थ पूरी पॉलीगॉन फैमिली. फिफ्थ है आर्च. इसको बहुत से लोग पेटल फॉर्म भी बोलते हैं मंडला में. सो दिस और दिस, आपको जो कन्वीनियंट लगे आप बोल सकते हो ना. आर्च में आप देखोगे देयर सो मेनी टाइप्स ऑफ आर्चेस. फर्स्ट वी हैव दिस semicircular arch, then complete ऐसे, देन थोड़ा सा पॉइंटेड, देन ऑनियन शेप एक आर्च है, डोम जैसा आता है ये. इट्स एक्चुअली इट लुक्स लाइक ऑनियन एंड गार्लिक, उसी से इंस्पायर्ड ये है. तो ये आप देखोगे गुरुद्वारे में या ताजमहल में है, इसमें आप देखोगे ये पैटर्न बहुत ज्यादा है. मीनार जैसे एंड एंड में ये दिखता है. दैट इज वन टाइप ऑफ पैटर्न. देन ये आर्च पैटर्न हम कैसे यूज करते हैं, इसको हम डबल लाइन करते हैं जनरली, एंड वी यूज फ्यू पैटर्न्स इनसाइड. सपोज मैंने पेटल बना लिया है एंड देन फिल दिस गैप.
तो दिस इज वेरी कॉमन इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्च. सो जनरली आप देखोगे वेर आप कहाँ देख पाओगे ये आर्चेस ज्यादातर, यू विल फाइंड देम इन रिलीजियस प्लेसेस, चाहे वो कोई भी रिलीजियस प्लेस हो, टेम्पल हो, मॉस्क हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, या फिर सिनेगॉग हो, जूइश टेम्पल हो, सब सब जगह पे आप देखोगे देयर ऑलवेज बी दिस काइंड ऑफ आर्चेस. तो इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन डिवाइन पावर से जरूर है. तो आप देखोगे हमेशा ये रहते हैं. जैसे यूरोपियन चर्च में भी आप देखो, हमारे अभी जैसे इंडियन टेम्पल्स में, साउथ के जो टेम्पल्स है वहां पे आप देखोगे ये बहुत टिपिकल ऐसी कमान है वहां पे. तो बेसिकली जहाँ पे भी ये कनेक्शन बताया गया है, जो सुप्रीम कनेक्शन आपको कह लो या डिवाइन कनेक्शन कह लो, या फिर हम अभी ये मंडला सिंपल एस्पेक्ट से बना रहे विदाउट एनी इंटेंट एज सच, सिर्फ आर्टिस्टिक प्योर फॉर्म के तौर पे, तो उसमें सिर्फ कर्व्स हमें दिखाई दे रहे हैं. तो इसमें आप देखोगे तो एक सुकून वाली फीलिंग आती है ये आर्च में. जैसे पुराने घरों में जो है हवेली होती थी, या फिर वहां पे ऐसे खंबे होते थे, ये सारे कॉलम्स के बीच में चौक होता था घर पे, सो देयर विल बी ऑलवेज दीज काइंड ऑफ आर्चेस इन बिटवीन. सो दिस वाज वेरी कॉमन. तो एक ब्यूटिफिकेशन के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है आर्च. अभी भी इंटीरियर्स में आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे होते हैं. देन इसमें आप जैसे जैसे इसका प्रोपोर्शन चेंज करोगे यू विल गेट लॉट ऑफ डिफरेंट आर्च टाइप्स. देन थोड़ा सा फ्लैट आप देखोगे तो इस तरह से ब्रॉड एस्पेक्ट आएगा एक. नाउ हाउ यू बी यूज दीज पैटर्न्स, आप एक तो इसको डबल लाइन जनरली करते हैं क्योंकि इट्स इजियर टू आइडेंटिफाई और डिस्टिंक्टली वो लेयर उभर के आता है, इसलिए हम डबल लाइन करते हैं. ऐसा नहीं है कि हर बार करना ही है, पर इट लुक्स ब्यूटिफुल तो इसलिए. एंड देन सपोज मैंने यहाँ पे सर्कल बना लिया. मुझे एक फूल बनाना है यहाँ सपोज. देन ये मैं शायद सिर्फ लाइन से भर सकती हूँ. अगर मुझे ये यहाँ पे कलर फिल करना है तो मैं फिल भी कर सकती हूँ. अगर मुझे यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है तो मैं सर्कल भी ड्रॉ कर सकती हूँ. एनीथिंग वी कैन कंपोज इनसाइड द आर्च. तो ये एक हमारा ये ब्लॉक हो जाता है. एंड व्हेन वी एक्चुअली ड्रॉ द मंडला यू विल सी पूरा लेयर जो है अलग अलग आर्चेस से बना हुआ है. सो इट्स वेरी प्लीजिंग एलिमेंट इन मंडला, ये बहुत ज्यादा यूज होता है. और एक ये है सिंपल पेटल पैटर्न. अगेन अनदर टाइप ऑफ एन आर्क. सो इफ यू ऑब्जर्व कीनली, ये जो सारे शेप्स में ड्रॉ कर रही हूँ दे ऑल कम फ्रॉम नेचर बेस. तो फूल, पत्ते, सूरज, चंदा, ये सारे जो एलिमेंट्स है हमारे नेचुरल नेचर में जो अकर करते हैं, all these are inspired in some way with the nature elements. So basically we don't create anything new, we just recreate whatever we see in nature somehow. ऐसा नहीं है कि हम ये फर्स्ट टाइम कुछ बनाएंगे नायाब सा. सो इट ऑलवेज ऑलवेज एग्जिस्ट्स इन द नेचर. तो जैसे सपोज आप एक पत्ता ले लो, ओके इसको मैंने यहाँ पे कट कर लिया, तो यू विल गेट दिस फॉर्म. आर्च बन जाएगा, ये भी एक आर्च बन जाएगा. फिर फूल आप देखोगे तो फूलों में भी बहुत सारे ऑप्शन, सर्कल है उसके बीच में. कोई भी आप सिंपल फॉर्म देख लो, यू विल हैव सो मेनी एलिमेंट्स टू यूज इन मंडला. ऑल्सो द पैटर्न्स दैट वी यूज इन ड्राइंग, मेहंदी, रंगोली, ये सारे पैटर्न्स उसमें भी हम यूज करते हैं. जनरली फ्री हैंड आर्ट में ये सारे एलिमेंट्स यूज होते हैं, पर मंडला का ग्रामर क्या है, मंडला का फ्रेमवर्क उसका मंडला ग्रिड है जिसके अंदर हम ये सारे कंपोज करते हैं. तो ऐसे देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल एज सच कि फ्रेम कौन से शेप में होना चाहिए, पर जनरली सर्कल्स में मंडला
ड्रॉ किया जाता है। और जैसे मैं बोल रही थी कि पहले सैंड मंडला के बारे में आपको बताया, वैसे और दो टाइप के मंडलास होते हैं। सैंड मंडलास एक हो गया, दूसरा है टीचिंग मंडला, और थर्ड वन इज हीलिंग मंडल। ओके, ये अलग इंटेंट से बनाए जाते अलग अलग मंडला स्टाइल्स हैं, या फिर टाइप्स बोल सकते हो। तो इसमें एलिमेंट्स ज्यादातर हम जो अभी सीख रहे हैं वही रहते हैं, पर जिस इंटेंट से आप बनाते हो वो आपको धीरे धीरे उसमें फर्क नजर आता है। जैसे टीचिंग मंडला है, तो उसमें हम कुछ ऐसे एलिमेंट्स यूज करेंगे जिससे कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिले। और हीलिंग मंडलाज में ये ऐसा है कि हम कंटिन्यूअसली, अभी जैसे हम जब बड़े होते हैं, या फिर ह्यूमंस इन जनरल हैव सो मेनी thoughts that are that bring discomfort to our thinking। जैसे कुछ ट्रॉमास होते हैं सबके दिन, जिंदगी में कुछ सुख होता है, दुख होता है, तो दुख जो है हम कभी कभी जाहिर नहीं करते सबके लिए। तो मंडला के थ्रू बहुत सारे ऐसे जो एकदम सूक्ष्म तौर पे है हमारे माइंड में, कि वेरी माइन्यूटली सबकॉन्शियस माइंड में कहीं पे है चीजें, तो मंडला के थ्रू बहुत सारी ऐसी चीजें हील होती है। So it is used as a means of meditation also, मंडला। और अगर आप देखो कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें भी जो चक्र है, हर एक चक्र का एक डायग्राम है, ऑल दोज आर मंडलास। तो देयर इज सो मच कनेक्शन विद द माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ मंडला। और इसका बहुत ज्यादा यूज होता है आपको काम डाउन होने में, जब आप, इफ यू आर वेरी एक्टिव पर्सन, यू हैव अ वेरी स्ट्रेसफुल लाइफ, बहुत बिजी स्केड्यूल है आपका, या फिर आप घर में हैं, इफ यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर एंटायर फैमिली, और होम मेकर जो भी है, आपका प्रोफेशन हो, आपका जो काम का करने का तरीका हो, उस सब में आपको ये हेल्प करेगा। इवन एज अ स्टूडेंट आपको ये हेल्प करेगा फॉर ब्रिंग डेवलपिंग योर कंसंट्रेशन। सो इट ओवरऑल इज वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। फिर लास्ट हमारा जो है एलिमेंट, वो है मैंगो मोटिव और फिर अमिया। उसको वर्ल्ड वाइड पैसले भी बोलते हैं, हम मराठी में कोयरी कहते हैं। अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग इसको नाम है, अम्बी, अमिया। इट्स बेसिकली द सीड ऑफ मैंगो, ऐसी वाली होती है। उसमें बेसिक इतना कुछ इंटरेस्टिंग शेप भी नहीं है, पर इंडियंस ने इसको इतना ब्यूटीफाई कर लिया है कि अभी यूरोपियन मार्केट में भी ये बहुत चल रही है। बेसिकली हमारे इंडियन कारागिर जो थे, तो ये मैंगो मोटिफ या पेस्ली पैटर्न बनाते थे बहुत ज्यादा। और जब अंग्रेज आए यहाँ पे हिंदुस्तान पे राज करने के लिए, देन they were mesmerized with these art forms and they took it back to their country। and उसका फिर ऐसे धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड वो पॉपुलर हो गया ये मैंगो मोटिव। तो दैट्स, आपने ये टिपिकल देखा होगा बहुत बार हमारे घर में, फैब्रिक, कुछ ना कुछ फैब्रिक में ऐसे होता ही है। बेडशीट हो, आपकी साड़ी हो, ड्रेस मटेरियल हो, आपका फैब्रिक का कोई कर्टन्स हो, पिलो कवर्स हो, इफ यू हैव सो मेनी प्रिंट्स, ये वेरी पॉपुलर है। देन इन इंडियन फोक आर्ट्स ऑल्सो, जैसे कलमकारी है, या फिर उसके बुट्टी जो बनती है साड़ी पे, यू सी इट सो मच, इट इज देयर एवरीवेयर। इट्स वेरी ब्यूटीफुल एलिमेंट इन जनरल। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है ड्रॉ करने का, पहले मैं एक सी ड्रॉ करूंगी, एंड एस एक ड्रॉ करना है, जिसमें एस में ऊपर का पार्ट थोड़ा छोटा होगा और बॉटम पार्ट थोड़ा सा वाइड और बड़ा। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब मंडला में हम किस तरह से यूज करते हैं, एक तो ये रेगुलर जो है वो ओपन एंड का यूज कर ही सकते हैं, उसके अलावा ये तीन बॉक्सेस है सपोज,
इसका मुझे स्ट्रक्चर ऑलरेडी आधा बना हुआ है मेरे पास. ओके, सो सिर्फ मैं यहाँ पे कर्व ऐड करूंगी इतना. और यहाँ से बस इतना सा मैं कर्व कनेक्ट. ये हो गया हमारे आमिया. इसको we fill this area to create more impactful design. This is very commonly practiced, especially in mandala art. तो हर एक मीडियम का अपना अपना अलग स्टाइल होता है. सो दिस इज लाइक वन इन दिस. सेपरेट इसको आप कैसे ड्रॉ करोगे? स्ट्रेट वाला दिखाती हूँ पहले. एक बनाओ दादाजी की छड़ी. देन एक ऐसे कर्व ड्रॉ करो. वेरी स्लो. सपोज आपको ये ऐसे करके ऐसे जाना मुश्किल लगता है. व्हाट विल यू डू? स्टार्ट फ्रॉम द बेस. फर्स्ट मेक दिस कर्व एंड देन यहाँ पे फिर सिर बना देंगे. विच एवर पैटर्न यू फील इजी आप वैसे फिर ड्रॉ कर सकते. समझ में आ गया? आप सब लोग मुझे ड्रॉ करके दिखाओ. हर डायरेक्शन से आना चाहिए आपको. प्रैक्टिस से ही आता है, पहले गो में नहीं आएगा. जो ऑलरेडी ड्रॉ करते हैं उनको शायद आ जाए. हॉरिजॉन्टल करना है तो ऐसे. सो यहाँ पे हमारे 6 पैटर्न्स जो है मेजरली वो कंप्लीट हो गए. इसके अलावा फिलर्स करके होता है. फिलर्स में आप देखो तो फिलर्स इज लाइक, अभी मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ मैं तो रिपीटेटिव हो सकता है. फिलर्स इज समथिंग लाइक अचार एंड चटनी इन आर थाली, जिसके बिना थाली अधूरी है. पर सिर्फ फिलर से हम पूरा खाना नहीं होता है हमारा. तो फिलर्स में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं which will add to the beauty of the main element, but they will not be impactful to hamper their existence. मतलब मैंने एक आर्च बनाया सपोज एक सर्क लेयर में, और वो आर्च जब उसके अंदर बहुत सारे पैटर्न्स हैं पर थोड़ा सा अभी गैप यहाँ पे सपोज बच रहा है ये दोनों के जंक्शन में यहाँ पे, तो मुझे ऐसा कुछ ऐड करना है जो इसके मीनिंग को ऐड करे पर अपना खुद का इसका आइडेंटिटी ज्यादा ना हो कि वो एक खुद से लेयर बन जाएगा. ओके, तो सिंपल लाइंस है.
लाइन में से आप कोई भी कर दो लाइंस, ऑल दीज आर फिलर्स. देन लाइन का क्रॉस करके चेक्स बना सकते हो. देन सपोज आपको ये एरिया कवर करना है फिलर में, वो पेटल पैटर्न जो है ये वाला, वो आप ऐसे यूज कर सकते हो. तो फिलर्स में ज्यादातर वॉल्यूम का महत्व रादर देन मेकिंग वेरी फाइन पैटर्न्स, तो ऐसे आप बना सकते हो. देन सेमी सर्कल, बहुत अच्छा लगता है पैटर्न. आप आपके खुद से भी बना सकते हो. कैन मेक स्मॉल ट्राइंगल्स, यू कैन मेक स्मॉल सर्कल्स, एनीथिंग यू कैन यूज. देन सपोज सर्कल ही यूज करने हैं मुझे बस, तो सर्कल में स्पाइरल यूज कर सकते हो ऐसे अलग अलग डायरेक्शंस में, जो चाहे आप उसमें यूज कर सकते हो एज फिलर. So this is very important when you have large scale drawings and you have lot of area to fill in. तो उसमें बहुत काम आते हैं ये fillers. Okay. Then moving ahead. Now we'll make a proper mandala. तो आप लोग एक fresh page ले लो, या फिर इसमें थोड़ी जगह है तो वहां पे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते हो यहाँ पे. Now we'll see what is a mandala grid first. So mandala grid is something like a mesh, या फिर एक नेटवर्क कह सकते हो. ये सर्कल है. वी ड्रॉ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई एंड उसके थ्रू हम उस एरिया को एंगल से डिवाइड करते यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर. जैसे अभी ये 45 45 45 45 आ गया, तो सारे इक्वल एंगल से हम उसको डिवाइड करते हैं. दैट इज कॉल्ड अ मंडला ग्रिड. So we are going to make one now. सब ए फोर साइज की बुक इस्तेमाल कर रहे हैं होपफुली. अगर किसी के छोटी बुक है बस बता देना, बड़ी है तो फाइन है. बड़ी है तो आप हाफ पेज दे सकते हो. वे मेरे पास यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है, तो आई कैन टेक अप टू 7.5 सेंटीमीटर रेडियस. अगर आपको और थोड़ा बड़ा ड्रॉ करना है, बड़ा ड्रॉ कर सकते हो. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर क्या रेडियस ले या फिर ऐसे, तो आप ज्यादा ले सकते हो वहां पे. तो अभी मैं सबसे यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू एक्चुअली डू ऑल द पैटर्न्स दैट वी हैव सीन सो फार. लेयर बाय लेयर हम करते जाएंगे. तो मैं आउटर मोस्ट लेयर आप यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर ले रही हूँ. आप 8 तक, आप 8 या 9 भी ले सकते हो इफ यू हैव मोर स्पेस. सेंटर मार्क करना मत भूलिए. बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आप ड्रॉ कर रहे हो पर आपका सेंटर हर बार अलग आ रहा है, सो देन दैट बिकम्स वेरी मेसी. ओके, ये मेरा सर्कल है. अब इसको मैं डिवाइड करूंगी. से लेट्स टेक 20 डिग्री एंगल रहेगा और इसमें हम बनाएंगे 18 पार्ट्स.
पे 20 डिग्रीज पे 18 पार्ट्स। So I'm taking a tractor. And I'm going to mark 20 degrees in upper half first. And then वो पॉइंट लेके सेंटर से कनेक्ट करके मैं नीचे एक्सटेंड कर दूंगी. If you have any doubts in the pattern, मैम सर्कल का आपने कितना दिया है? सॉरी आपकी आवाज कम आ रही है थोड़ी. मैम सर्कल आपने कितने डायमीटर का दिया है, कितने का है? सर्कल मैंने आउटरमोस्ट अभी 7.5 सेंटीमीटर का लिया है. ओके ओके मैम, थैंक यू. अभी मैं इसमें लाइंस ड्रॉ करूंगी. फर्स्ट बेस लाइन आपकी पक्की कर दो. 0 और 180 का मार्क करना मत भूलना. सो इट्स इजियर फॉर यू टू एस्टेब्लिश योर बेस लाइन ऑलवेज. और लाइंस को थोड़ा बाहर जा रहे हैं तो जाने दो, एक्सटेंड करो. इन केस यू वांट टू, यू विल फील कि बाहर में मुझे बाद में लेयर्स थोड़े ऐड करने हैं तो आप ऐड कर सकते हो. बिकॉज यू A4 में आपको पास ज्यादा जगह रहेगी. यहाँ पे अभी मेरा एंड टू एंड है इसलिए थोड़ा कम. और अभी देखो ये पॉइंट और सेंटर मुझे ज्वाइन करना है ऐसे. ओके ये हो गया अपर हाफ में. सेम लाइन में नीचे एक्सटेंड कर दूंगी सो दैट मुझे नीचे के भी पॉइंट्स इक्विवेलेंट मिल जाएंगे. तो जब 360 को आप 20 से डिवाइड करोगे तो आपको 18 पार्ट्स मिलेंगे. ठीक है, तो 18 आने चाहिए आपके डिविजन्स. यू कैन इमेजिन अ लार्ज पिज्जा being shared by 18 friends. Just give me a thumbs up when everybody is done drawing. Ma'am, how many centimeters are those? ये 7.5 है बाहर का सर्कल और अंदर 20 डिग्री से डिवाइड किया है. और वो जो अंदर के आप जो वो बनाए ना, हाँ वो इसका ठीक लेंथ है. आप डिसाइड कर दो रैंडमली. उसका मतलब कोई जरूरत नहीं है. रैंडमली कर दूं? ओके ठीक है, थैंक यू. सर रैंडमली कर लो बोलो. आराम से करो सब लोग. प्रॉपर मंडला ग्रिड इज वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट गिव मी अ थम्स अप व्हेन एवरीबॉडी इज डन. तब तक मैं अंदर के सर्कल्स के डायमेंशंस यहाँ लिखती हूँ.
मैम एक बार चेक कर लो ना। थोड़ा सा bring it little closer. It's little blurred. हाँ ठीक है, थोड़ा भी मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है, पर लाइंस तो मुझे अभी ठीक ठाक ही लग रहे हैं जो ब्लर है। तो 18 है ना, एक बार काउंट कर देना। हाँ कर दिया। ओके। So we are using this grid where the circles inside will be 1.2 centimeter, the first circle, then 2.5, 3.5, 5, 6, 7 and 7.5. So I'll be drawing the inside circles now. The innermost circle or the first circle of the mandala is called as base circle. तो यहाँ पे हमारा base circle 1.2 centimeter radius का है. So whenever you're going to think about any mandala, always be specific कि आप radius बता रहे हो या फिर diameter. ज्यादातर रेडियस ही सब बोलते हैं, कुछ लोग डायमीटर के जैसे भी बात करते हैं. So it can create confusion at times. 1.2 के बाद मेरा है 2.5. So this circle is our base circle. So whenever I say कि draw a mandala of 8 centimeter with base circle of 2 centimeter, that will always mean कि बाहर का circle जो है मेरा 8 centimeter का है
और बेस सर्कल जो है, मतलब पहला सर्कल जो है वो है 2 सेंटीमीटर का, तो बेस सर्कल 2 सेंटीमीटर वैसे. So that's the terminology that we should use. अभी यहाँ पे मैंने लेयर्स के डायमेंशंस थोड़े सोच के लिए हैं, क्योंकि आई वांट यू ऑल टू हैव सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट प्रपोर्शंस. और ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप 20 डिग्रीज ही एंगल लो या 10 डिग्री लो, 15 डिग्री लो. वी विल बी टेकिंग ऑल दीज एंगल्स, लाइक ज्यादातर 10, 15, 20, 30. These are the angles that we use for making the grids most of the times. और जैसे स्मॉल आपका है, जैसे कोस्टर आप बना रहे हो, सपोज 4 इंच का है, तो उसमें आपको 30 डिग्रीज भी चल जाएगा, 45 डिग्रीज भी चल जाएगा. सो जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का साइज बढ़ जाता है, देन यू शुड मेक द एंगल स्मॉल, ताकि आप इक्वल प्रोपोर्शन ज्यादा अच्छी तरह से उसमें प्रोपोर्शनेटली पैटर्न्स ड्रॉ कर सके. इफ यू वांट टू चेंज एनी डायमेंशन यू कैन गो अहेड, पर एंगल अभी के लिए 20 रखना, क्योंकि हम फिर एक एक करके एंगल देखने वाले. डायमेंशंस में आप चेंज कर सकते हो. ये हमारा ग्रिड रेडी है. ड्राइंग द मंडला ग्रिड, इनिशियली ये बहुत बोरिंग काम लगता है. तो अगर आपको बहुत टाइम नहीं है, या फिर आपके बहुत जैसे ये बहुत ही बोरिंग काम लगता है, तो व्हाट यू कैन डू इज, आप प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हो पेपर पे हर एक ग्रिड के. जैसे 10 डिग्रीज, 15 डिग्रीज, 20 डिग्रीज आप एक बार बना लो, एंड देन यू कैन आइदर जेरोक्स इट और उसको स्कैन करके रिप्रिंट कर सकते हो आपके पेज पे. तो आपके पास रेडीमेड ग्रिड्स रहेंगे, एंड देन यू कैन ड्रॉ मंडला वेन एवर यू वांट. तो बहुत आपको अगर मल्टीपल टाइम बनाना है तो दैट्स अ गुड मेथड, बट आई वुड सजेस्ट कि आप हाथ से ही बनाओ, क्योंकि उससे आपको प्रोपोर्शन का अच्छा एक आपका नॉलेज अच्छा बिल्ड होता है, डेवलप होता है. दूसरी कुछ ऐसे भी चीज करते हैं लोग कि दे डोंट ड्रॉ द सर्कल्स फर्स्ट, दे जस्ट ड्रॉ द एंगल्स फर्स्ट, एंड जैसे उनका प्रोपोर्शन चाहिए फिर वो उसके हिसाब से रैंडमली एंगल्स ड्रॉ करते हैं विदाउट मेजरमेंट्स. वैसे भी कर सकते हो आप, लाइक फॉर एक्सपेरिमेंट यू कैन ट्राई दैट समडे. Should I proceed? Have you all done with the circles and grid both? यस मैम. Okay. और बाकी सबके क्या पोजीशंस है? Does anybody want me to wait or should I continue? Just give me a thumbs up. Okay, fine. I assume कि आप सब लोग बना रहे हो मेरे साथ. तो wait मैम. Okay, I can wait. मुझे बता देना कब शुरू करना है. Okay, take your time.
तो अभी जो मैं पेन यूज करी वो बता देती हूँ। आई एम यूजिंग दिस आर्ट लाइन फाइन टिप पेन, 10 रुपए का पेन है ये। इट्स गुड फॉर प्रैक्टिस। इसके अलावा ब्लैक जेल पेन में कोई भी यूज कर सकते हो विच इज वाटर प्रूफ। पेंटोनिक जेल पेन इज अ गुड वन टू स्टार्ट विथ। देन इसके अलावा लक्सर फाइन राइटर पेन है, आते हैं 10 रुपए के, दैट दोज आर ऑल्सो वेरी गुड। ये जो आता है लिंक ओशन जेल, ये बिल्कुल मत यूज करना। देन एट टाइम्स यू कैन यूज स्केच पेन ऑल्सो इन बिटवीन। और अगर आपके पास बॉल पेन ही है और आपको ड्रॉ करना है तो पेंसिल इज अ बेटर ऑप्शन देन बॉल पेन। एक्चुअल में जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हो देन यू कैन इन्वेस्ट इन गुड फाइन लाइनर्स। सो फाइन लाइनर्स में आपको कल दिखाऊंगी सारा मटेरियल, पेपर और पेन का कल दिखाऊंगी। प्रैक्टिस के लिए एनी वाटरप्रूफ जेल पेन कैन बी यूज्ड। और आपको सिर्फ अगर पेंसिल से करना है पेंसिल से भी कर सकते हो, आपका हाथ अच्छा उसमें डेवलप होगा। तो जब सारे पैटर्न्स में आपकी सफाई आ जाए, जैसे लाइंस आपके स्ट्रेट आने लगे, कर्व्स आपके सारे डबल लाइनिंग जो है वो प्रोपोर्शनेट आने लगे, तो धीरे धीरे 4-5 मंडला आप वैसे ही प्रैक्टिस से ड्रॉ करो। देन फाइन लाइनर जब आप यूज करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि ऑफ कोर्स थोड़ा इम्प्रेशन में, एक ओवरऑल इफेक्ट में बहुत फर्क आता है फाइन लाइनर से। पर ऐसा नहीं है कि आप अगर फाइन लाइनर से ड्रॉ करोगे तो ही आपका मंडला अच्छा आएगा, ऐसी बात नहीं है। तो अगर आपकी हाथ में सफाई नहीं है तो दुनिया का कोई भी पेन आपकी मदद नहीं कर सकता है। So here we have 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 circles and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लेयर्स हैं। तो हमारे जो भी हमने पैटर्न्स अभी देखे हैं एक एक करके हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो दिस इज लाइक प्रैक्टिस फॉर बेसिक पैटर्न्स और कैसे आप अपना डेवलप कर सकते हो, इसलिए खास करके फर्स्ट डे का रखा है। और कल से हम अलग अलग पैटर्न्स एक्सप्लोर करेंगे। तो उसकी ग्रिड मैं आपको होमवर्क के लिए दे दिया करूंगी, आप ग्रिड रेडी रखना तो हम फटाक से कर पाते हैं फिर क्लास में। अभी फर्स्ट लेयर के लिए मैं आपको तब तक थोड़े पेटल्स दिखा देती हूँ, आप अपने मन से ड्रॉ करना। और सी हमारा बेसिक एक्सरसाइज का एम ये है कि ओन डेवलप योर ओन पैटर्न्स। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने अपने पैटर्न्स ट्राई करो, जो भी आपके मन में आ रहा है वो आप ड्रॉ करो। इन केस यू आर नॉट एबल टू डिसाइड कि क्या करना है क्या नहीं, देन यू कॉपी माइन। तो ये सिंपल फ्लावर का ये वाला पेटल कर सकते हो, देन ये वाला पेटल कर सकते हो, ये वाला पेटल कर सकते हो, ये पेटल कर सकते हो, ये डन। ओके, ये वाला। These are few petal types that you can use in the first layer. यहाँ पे फर्स्ट लेयर में मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप सिंपल फ्लावर ड्रॉ करो। दैट्स जस्ट बिकॉज एवरीबडी इज कंफर्टेबल विद द फ्लावर्स, बिकॉज वी कीप ऑन ड्रॉइंग दैट अ लॉट सिंस स्कूल टाइम। तो अभी वी हैव दीज 18 पार्ट्स हियर। तो एक वेज में ये एक वेज है, ओके okay? WEDGE, चीज वेज जो होता है ना वैसे वाला, VEG वाला वेज नहीं। सो दीज आर द वेजेस जहाँ पे हम ये एक वेज, दो वेज मिला के
3 पार्ट्स मिला के 4 पार्ट्स मिला के एक एक पैटर्न क्रिएट करते हैं अलग अलग। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू यूज 18 पार्ट्स है तो हम दो का पैटर्न बना सकते हैं, 3 का पैटर्न बना सकते हैं और 6 का पैटर्न बना सकते हैं। सो हियर आई एम गोइंग टू यूज 2 पार्ट्स टू मेक 1 पेटल। ओके, सिंपल बनाएंगे हम, इट्स नॉट एट ऑल कॉम्प्लिकेटेड। चाहे तो आप एक छोटा सा यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर सकते हो जस्ट फॉर द सेंटर पर्पस। थोड़ा डार्क बना सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। देन आई विल मेक दिस, आप अपने हिसाब से करो, ये जो भी आपके मन में है वो ड्रॉ करना। आप 3 पार्ट्स लेके भी एक पेटल बना सकते हो, या फिर एक सिंगल वेज में एक पेटल भी चलेगा। पेटल पेटल वैसे हो रहा, पंबल। अब यहाँ जो जगह बची है उसमें मैं और एक छोटा सा लेयर इसका ड्रॉ करूंगी, रेप्लिकेट। आप ये कोई भी शेप में कर सकते हो। और जो जगह खाली बच रही है मैं उसमें से फिल अप कर दूंगी। So this space that I'm filling in is the negative space, which will highlight our drawn pattern more than before. So this space here we are making it dark. कभी कभी आप उसको ब्रीदिंग स्पेस की तरह 2 लेयर्स के बीच में गैप रख के खुला भी रख सकते हो, जिससे आपका लेयर उभर के आए। Now if you want you can make a line like this. These are like extra additions that you want. तो आपको करना है तो कर सकते हो, वरना आप प्लेन भी रख सकते हो। इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट, एकदम लाइट करना है, बहुत उसकी थिक ऐसी लाइन नहीं, वेरी कैजुअल। अभी ये पैटर्न के बाद आप चाहे तो एक सर्कल बना दो एक्स्ट्रा उसके आसपास, बाउंड्री जैसा। नेगेटिव स्पेस नहीं आया समझ, हाँ डोंट वरी, वो मैं समझाऊंगी और बहुत बार समझाऊंगी, बार बार एग्जाम्पल उसका रहेगा। यहाँ पे एक 1 mm या 2 mm गैप लेके आप और एक बस सर्कल ड्रॉ कर दो, अगर आपने यहाँ पे ब्लैक फिल करा है तो। अगर आप खाली रख रहे हो तो फिर जरूरत नहीं है आपको। ये ब्लैक है इसलिए बाद में अगर सपोज मैं नेक्स्ट लेयर यहाँ से कंटिन्यू करूंगी तो ये उसमें मर्ज होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा एक सर्कल ड्रॉ करा है ताकि वो मर्ज ना हो बस।
तो अभी आपके पास कॉम्पस जो है उसमें शायद पेन आपका ना फिट हो, तो व्हाट यू कैन डू इज, आप आपके जो जेल पेन की जो रिफिल है वो आप लेके टिश्यू पेपर या फिर छोटा सा वेट वाइप या फिर छोटा कपड़े का टुकड़ा लेके उसको ऐसे रैप कर दो रिफिल को, मतलब उसका थिकनेस आपकी पेंसिल जितना हो जाए तब वो कंपास में फिट होगा आराम से, एंड देन यू कैन ड्रॉ द सर्कल वेरी इजीली। अगर आप सबके पास ऐसा ही कॉम्पस है तो देन आराम से, ये यूनिवर्सल होल्डर होता है तो वो आप वो ला सकते। सो दिस इज फ्रॉम मैपेड, इफ यू वांट यू कैन परचेस इट। पर अगर आप बाकी के आर्ट फॉर्म्स या फिर मंडला नहीं करने वाले हो आगे जाके, या फिर, तो जरूरत नहीं है लाने की, रेगुलर कॉम्पस से भी ये हो सकता है, आपके जेल पेन से रिफिल के साथ काम आपका हो जाएगा। या फिर अभी सिर्फ पेंसिल से ड्रॉ करो एंड देन यू कैन ट्रेस इट विथ पेन, दैट्स ऑल्सो फाइन। ओके, अब ये जो लेयर है सेकेंड वाला, यहाँ पे हम यूज करेंगे अमिया पैटर्न, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा इलोंगेटेड है एरिया, तो इसमें अमिया पैटर्न अच्छा लगेगा। तो अमिया पैटर्न में आपने देखा है कि जो मैंने दिखाया कि पहले सिर्फ इतना आप कर दो और नीचे का जैसे का तैसा आप उसको ट्रेस आउट कर सकते हो, ये एक स्टाइल में आप कर सकते हो। या फिर अगर आपको सिंपल वाला करना है, ऐसे भी आप कर सकते हो, ये वाला पैटर्न। या फिर if you want to combine two together and make only one amiya, you can do that too, आधा इधर आधा इधर। सपोज मुझे ये कर्वी बनाना है, पैसे बना सकते हो, एक ऊपर और एक उल्टे डायरेक्शन में चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। सो वट एवर यू फील लाइक डूइंग आप करो। ये एक्चुअली उल्टा अच्छा लग रहा है, अभी मैंने ये पेन से बना दिया, वरना मैं उल्टा ही बना देती, अच्छा लगता है ये। अभी तो मैं स्टार्ट किया तो आई हैव टू डू दिस ओनली। You can explore your own style, okay? It's not hard and fast. If you want, you can use colors also. आप पेंसिल कलर्स, स्केच पेन, ये सारे यूज कर सकते हो बीच बीच में, अगर आपको थोड़ा कहीं पे, जैसे मैंने यहाँ पे ब्लैक किया है तो आप वहाँ पे कलर भी यूज कर सकते हो। If you want me to show any pattern again, let me know, okay? Now I'm going to fill this area. आप चाहे तो ये यहाँ पे ऐसे एक एक डॉट दे सकते हो अंदर, ये डिटेलिंग से बहुत फर्क पड़ता है, ओके? स्मॉल डिटेल्स दैट यू create will make the difference in your entire outlook of that layer. Then I'll just show you, if you want to use color, for example,
You can use it like this. It's very little gap. That makes the difference. चाहे तो आप बाहर भी ऐसे कर सकते हो सेम कलर में, या फिर यू कैन मेक इन इट डिफरेंट कलर ऑल्सो. ब्लू का ही दूसरा शेड लेके भी यहाँ पे कर सकते हो चाहे तो. इनिशियली मैं स्टूडेंट्स को बोलती थी कि पहले लेयर में हम पहला मंडला हम ब्लैक एंड व्हाइट ही करेंगे, बट देन आई थॉट व्हाई नॉट यूज फ्यू कलर्स, सो विल बी मोर इंटरेस्टिंग. सो यहाँ पे भी देखो नेगेटिव स्पेस है जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं. नाउ नेगेटिव स्पेस के बारे में थोड़ा बताती हूँ. सबसे बड़ा अगर एग्जांपल देना है, पुराना मेरा so this is one pattern. So you can see clearly अभी यहाँ पे हमारे ये पेटल्स है. तो इन केस आई हैड केप्ट दिस स्पेस वाइट तो ये इतने उभर के नहीं आते, बट बिकॉज वो जो नेगेटिव स्पेस है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया, दिस पैटर्न हैज स्टार्टेड टू कम टू बी मोर इम्पैक्टफुल. जैसे अब अभी जो ओल्ड स्टूडेंट्स है वो शायद सुन के बोर हो जाएंगे, बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ मैं. तो यू फॉर नेगेटिव स्पेस यू कैन इमेजिन अ डार्क रूम. सपोज जैसे हमारे घर में लाइट चली जाती है सपोज, एंड पूरा एकदम अंधेरा हो जाता है. सडनली यू लाइट अ स्मॉल मैच स्टिक और कैंडल. आपकी नजर जो है वो डायरेक्टली वो कैंडल पे जाती है. सो द कैंडल इज दिस लेयर, और जो अंधेरा है वो ये नेगेटिव स्पेस है. तो क्योंकि डार्क है इसलिए हमारा ध्यान जो है कैंडल पे जाता है. अब वही सेम कैंडल या फिर मैच स्टिक आप सूरज के सामने तपती धूप में अगर पकड़ोगे दोपहर के 12 बजे सपोज, तो नोबडी विल इवन नोटिस दैट कैंडल और मैच स्टिक, क्योंकि सूरज इतना पावरफुल है कि उसका एग्जिस्टेंस इतना ज्यादा है कि इट विल नॉट मेक एनी कॉन्ट्रास्ट या फिर नोटिसेबल चीज जो है वो लाइट के अंदर नहीं दिखेगी. तो पॉजिटिव पॉजिटिव अगर बहुत ज्यादा हो गया तो वो मोनोटोनस हो जाता है. सपोज जैसे यहाँ पे देखो कलर है और यहाँ पे जैसे एक गैप है, तो अगर ये नहीं होता तो ये थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता. तो जब भी हमें जरूरत है कि थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना है, बेसिकली यू नीड टू ब्रिंग ड्रामा. एक सिंपल एग्जांपल कहती हूँ कि जैसे अगर मैं ऐसे कुछ लोग होते हैं ना जो एक बोरिंग टोन में बात करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, बहुत टेप लगा टेप लगा रहा है, बहुत कैसेट कैसेट शुरू हो गई, ऐसे हम कुछ लोगों को कहते हैं. बिकॉज दे टॉक इन अ वेरी बोरिंग टोन. उनका एकदम हाँ मैं वहां गई थी और ऐसा हो गया, तो सुन के ही हमें वी कैन यॉन. पर जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत फुर्तीले तरीके से बात करते हैं, वाओ व्हाट अ थिंग इट वाज, बहुत ड्रामा उनके बातों में होता है, ड्रामेटिक टोन.
तो वैसे ही हमें यहाँ पे मंडला में क्रिएट करना है. वी नीड टू क्रिएट ड्रामा थ्रू आवर आर्ट. तो ड्रामा में क्या होता है, वेरिएशंस होते हैं टोन्स के, सपोज. सो सेम थिंग वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन हियर थ्रू द प्ले ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ओके, तो अब कभी जैसे यहाँ पे डार्क बना के मैंने कर दिया, फिर कभी मैं मुझे चाह अगर बहुत खिचड़ी हो रही है तो मैं 2 लेयर में ऐसे खुले ही छोड़ दूंगी. सो दैट इज ऑल्सो नेगेटिव स्पेस, दैट इज वेरी इसेंशियल, ताकि आपका बैलेंस बना रहे, डिजाइन का ओवरऑल बैलेंस. ठीक है, तो इसलिए वो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है. समझ गए अभी कॉन्सेप्ट पॉजिटिव नेगेटिव का? उसमें कुछ डाउट है तो अब बोल दो. सी, अब ये एक पैटर्न है. तो यहाँ पूरा ब्लैक करा हुआ है, दिस इज लाइक माय फेवरेट. और यहाँ पे पूरा खुला है, पर इन दोनों के बीच में 2 गैप्स हैं जो काफी एकदम खाली है. तो जो ये ब्रीदिंग स्पेस आप देते हो, उससे थोड़ा सा हमें सांस लेने में, मतलब लेयर्स को सांस लेने में आसानी होती है, और उसका इम्पैक्ट भी पावरफुल होता है. यहाँ पे देखो अब पूरा खाली है और अंदर भरा हुआ है. तो ये खाली जो है सब भर दोगे तो इट विल बी लाइक अ बिग मेस. तो नथिंग विल बी हाईलाइटेड, आपका ध्यान कहीं नहीं जाएगा, फिर सब एक टोन में आ जाएगा. ओके, नाउ अभी नेक्स्ट लेयर यहाँ पे जो है, सो आई एम थिंकिंग टू यूज आर्क, कर्व, सेमी सर्कल, कर्व, आर्क या सर्कल. ये जो हमारे 4 एलिमेंट्स है उसमें से आप कुछ भी यूज करो, सर्कल फैमिली के, मतलब सेमी सर्कल, कर्व और सर्कल, ये 3 करना, आर्क रहने दो. बोथ साइड में नेगेटिव स्पेस कैसे फिल होगा? बोथ साइड मतलब विच साइड्स? यहाँ अंदर और बाहर आप बोल रहे हो? नो मैम, मैम मैंने सेम दोनों साइड पे बनाई जो आपने बनाया था पहला पे, मैंने उसी पे फॉलो किया है. बिल्कुल राइट, सीधा वाला तो आपने पहले बोला था ना कि वहाँ पे सीधा वाला. नहीं, मैं समझी नहीं, मतलब अब दूसरी साइड कौन सी आप बोल रहे हो, ये वाली? हाँ मैम, ये आपको बता दिया. 2 साइड्स में अभी ये बोल रहे हो आप, यहाँ पे भी खाली है और यहाँ पे भी खाली है, ऐसा? आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. आई कैन क्लियर योर डाउट देन, या फिर आप बाद में व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज भेज देना, फिर मैं वो बता सकती हूँ आपको. अच्छा. तो यहाँ पे हम यूज करेंगे वो कर्व में से कोई पैटर्न, कर्व, सेमी सर्कल या सर्कल. सपोज इफ यू वांट टू यूज सर्कल, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, आई शो यू 4-5 ऑप्शंस विद पेंसिल. तो ये होमवर्क के लिए रहेगा लेयर, सिर्फ ये लेयर होमवर्क के लिए करना है. ओके, बाकी के लेयर में कुछ नहीं करना है, वो हम क्लास में ही करेंगे. और दूसरा एक ग्रिड बस बना के रखना. तो यहाँ देखो, सर्कल सपोज मुझे करना है ये पूरी में. So I can make one complete circle in one wedge, and I can add layers inside. एक बहुत सिंपल है पर अच्छा दिखता है. जनरली सर्कल लुक्स वेरी कंप्लीट पैटर्न इन इटसेल्फ. ये ट्राई कर सकते हो. देन कर्व करना है, ठीक है. कर्व में आप एक तो ऐसे कर्व्स कर सकते हो थ्रू आउट वेज. ओके, ये शायद सपोज फिर दूसरे डायरेक्शन में कर लो. जस्ट गिविंग यू आइडियाज, ऐसा ही करना है ऐसा बिल्कुल नहीं है. एंड इफ यू वांट टू ड्रॉ सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल के लिए हमारे पास ये थोड़ा सा ज्यादा हाइट हो जाएगा. सो इफ यू वांट यू कैन मेक अ सेमी सर्कल इन 2 वेजेस टुगेदर. You can repeat layers inside if you want.
Now, whenever you draw a curve inside another curve, be very slow in drawing and repeating. Otherwise वो टेढ़ा मेढ़ा आएगा and it will not look uniform. अभी यहाँ पे हमारी जगह बच जाती है, चाहे तो आप यहाँ पे भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ये आप उल्टे डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। तो आप दोनों डायरेक्शन से सोचना, हर बार जरूरी है कि आप टूवर्ड्स ये यही हो. You can even draw चंद्रकोर. I'm just giving you idea, okay? ऐसा करना ही है, ऐसा नहीं है, पर कर सकते हो in case you want, and then you have this space here. Okay, ऐसा कुछ कर सकते हो. Then कर्व, कर्व का ये बता दिया. कर्व में आप सिंपल अगर ऐसा करना चाहते हो, तो आप थ्रू आउट द लेयर ऐसे भी कर सकते हो. सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप कौन सा पैटर्न कैसे इस्तेमाल करो. आई लीव इट ऑल अप टू यू, बट जस्ट मेक इट लिटिल proportionate. That's only our concern. Suppose मुझे तीनों पैटर्न्स इकट्ठा यूज करने हैं. ओके, मैं क्या कर सकती हूँ देन? ये बन गया कर्व, फिर आ गया सेमी सर्कल, एंड देन यहाँ पे सर्कल. ऐसे भी कर सकते हो. बीच में जो जगह बचती है वो यूज कर सकते हो, या फिर यू कैन fill it with other curves also, छोटे छोटे curves. You can play in proportions, मतलब 4-5 अलग अलग sizes के curves आप draw कर सकते हो. Then you can make complete layers in circles also. ऐसे भी कर सकते हो. So ये एकदम रैंडम ऐसे मत पैटर्न चूज करना जो इसका इससे बिल्कुल भी कोई कनेक्शन ही ना रहे. तो make it little proportionate and yet a part of the entire design. ठीक है, तो ये लेयर तक आप कंप्लीट करके रखना, बाकी के लेयर्स मत बनाना. एंड दूसरी जो ग्रिड है वो मैं ग्रुप पे डाल देती हूँ डायरेक्टली, वो आप करके रखना फॉर द नेक्स्ट मंडला. ओके, और कल हमें कलर्स लगेंगे, हम बनाएंगे ज्योमेट्रिक पैटर्न हमारा ये कंप्लीट होने के बाद. इसका मैं फोटो डाल दूंगी ग्रुप पे ताकि आपके पास रेफरेंस के लिए रहे. और रिकॉर्डिंग एक 9:30 बजे तक आ जाएगी. तब तक विच कलर आप स्केच पेन, ब्रश पेन, पेंसिल कलर, कोई भी ड्राई मीडियम रखना, crayons, anything you can use.